Assalamu alaikum, dear students. Today we have to discuss another important measure of central tendency, that is median. आप जानते हैं 3 मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी होती है, 2 तरह के होते हैं। दो तरह के एवरेज होते हैं, मैथमेटिकल एवरेज एंड पोजिशनल एवरेज। जहाँ तक मैथमेटिकल एवरेज का ताल्लुक है, अर्थमेटिक मीन वो आपने डिटेल में पढ़ा, और आज हम मीडियन डिस्कस करने जा रहे हैं। मीडियन क्या होता है? मीडियन को कहा जाता है इट्स ए पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। इट्स अ पोजिशनल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। व्हाट डज दिस पोजिशनल मेजर मीन? देखिए, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक सीरीज़ है 1 2 3 4 5। एक सिंपल सी एग्ज़ाम्पल हम लेंगे। मीडियन is an item in any series which has 50% concentration of items above it and 50 concentration of items below it. For example, it's the middle one, median, located in the center. You see here 50% are above and 50% are below. Half are above and half are below, and what lies in between, that's median. That is median. So in any series, median is an item that divides the group into 2 equal parts. One part, for example, comprising all items greater than the median, and one part comprising the items less than the median. As you see in case of this example, you see 3 below, above 3 are 4 5, these are greater than the median, and 1 2, these are the values which are less than 3. So it is an item which exists somewhere in the middle of the data, right? जो median है, it is represented by or indicated by M. Median is represented by M. आप जानते हैं कि हमारे पास मुख्तलिफ तरह की सीरीज़ होती है। यू हैव द इंडिविजुअल सीरीज़, यू हैव द डिस्क्रीट सीरीज, you have the individual series, discrete series and continuous series. For individual series, for example, जो आपके सामने दी है, in order to calculate, कैलकुलेशन कैसे होती है? For individual series, the formula is M is equal to size of n plus 1 upon second item. Size of n plus 1 upon second item. Size of n plus 1 upon second item. What is n? N is the number of items in the series. देखिए, मीडियन कैलकुलेट करने के लिए आपने क्या करना? फर्स्ट you have to either arrange the values or the items either in the ascending order in the descending order, right? उस ordering के बाद we have to add up the number of items, ठीक? Then we have to apply this size of n plus 1 upon second. फॉर एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास एक सीरीज पहले से, हमें इसे असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर देना। अब देख लीजिए कैसे करेंगे, ठीक? ये हमारी सीरीज़ है। अब नंबर 1 पे कौन सा आएगा? 10। कितने आइटम्स हैं? सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11।
So we have to give it ascending order. For example, 10, 10 के बाद 11, 11 के बाद 15, 15 के बाद 17, 17 के बाद 20, 21, फिर 32, 33, again 32, शायद twice है, 33, 35, 41। तो इस तरह से हमने इसे दिस इज नंबर सिंपली एंड दीज आर लेट इट बी मार्क्स। कुछ भी हो सकता है, यहाँ हम एक्स के बजाय मार्क्स लिखें। ठीक, ये हमारी ओरिजिनल सीरीज जो दी थी हमें। अब क्या करेंगे हम? टेक द समेशन, व्हाट्स n here? n is 11. Now applying, in case of this individual series, m will be equal to size of n. What is n? n is 11 plus 1 upon second item. That is 12 upon second item. That is 6. m is equal to 6। आप ढूंढना है m कौन सा आइटम, साइज ऑफ 6th आइटम इज, अब आपको इस x में ढूंढना है मार्क्स में, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ। 6th आइटम हमारा क्या है? साइज ऑफ 6th आइटम इन द सीरीज इज 21। साइज ऑफ 6th item is 21. Therefore, median in case of this series is 21. This is how we calculate median for individual series, right? अब अगर हमारे पास discrete series हो, discrete series के लिए भी यही फॉर्मूला है। discrete series में क्या करना है? यही तरीका है। You have to arrange the data in the ascending or the descending order, फिर convert the simple frequency of a series into cumulative frequencies हमने बनानी पड़ती है, फिर डिटरमाइन करना पड़ता है n+1 अपॉन सेकेंड आइटम, फिर मीडियम डिटरमाइन करना है कॉरस्पॉन्डिंग टू द n+1 अपॉन सेकेंड आइटम, राइट? तो लेट अस कैलकुलेट इट फॉर अ डिस्क्रीट सीरीज। नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जांपल फॉर डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा? हमारे पास आइटम्स इन द फॉर्म ऑफ x एंड यू हैव फ्रीक्वेंसी f। ठीक, हमारे पास 1 2 3 4 5 आइटम्स। फॉर एग्जांपल लेट इट बी देयर फ्रीक्वेंसी, राइट? पहला काम क्या करना है हमने? इन केस ऑफ दिस डिस्क्रीट सीरीज यू हैव टू फाइंड CF, cumulative frequency. Cumulative frequency means you have to cumulate the frequency like 3 plus 4 7 plus 5 12 plus 6 18 plus 7 25। तो n कितना है हमारा? 25। एक बात यहाँ याद आपने रखनी है, जो n एंड लास्ट टर्म ऑफ दिस CF इज ऑलवेज इक्वल। ठीक, ये हम cumulative frequency फ्रीक्वेंसीज को ऐड करते हैं, 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7, राइट? तो अब फार्मूला में एडजस्ट कीजिए। हमने हमारी फार्मूला है साइज ऑफ n+1 अपॉन सेकेंड आइटम। व्हाट्स n हियर? n is 5 plus 1 upon second item, that is 6/3. Size of third item is थर्ड आइटम, यहाँ तो हमें फ्रीक्वेंसी मिलती है। ठीक, तो इसलिए हम क्या करेंगे? इट इज इक्वल टू साइज ऑफ थर्ड आइटम। यहाँ 3 मिलता है, 3 1 3 2 6। साइज ऑफ सेकेंड आइटम लाइज इन, ये ढूंढना है हमने, कहाँ है? लाइज इन CF। किस CF में है? सेकेंड आइटम इज इन 7 में। साइज ऑफ second item lies in CF 7. Therefore,
अब इसके डायरेक्ट में कंटेक्ट में जाइए आप, फ्रीक्वेंसी इज 4, एक्स क्या है, देयरफॉर मीडियन इज 2, यहाँ मीडियन 2 है। कैसे देखिए, अनलाइक द प्रीवियस, अगर हमारे पास 3 ही आइटम्स हैं, यहाँ ज़ाहिरी तो लगता है ये 1 2 3 4 5, यहाँ हमारे हिसाब से मीडियन होना चाहिए 3, लेकिन एक्स में हम लोकेट नहीं कर, बिकॉज वी आर डिसाइडिंग मीडियन ऑन द बेसिस ऑफ द फ्रीक्वेंसीज ऑफ आइटम्स। इस वक्त हम फ्रीक्वेंसीज को कंसिडर कर रहे हैं, तो उस हिसाब से पहला हम क्या काम हमारा होता है, यू हैव टू फाइंड सी एफ, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक। तो फिर इसके बाद साइज ऑफ n प्लस n इज, n कितना था हमारा, n क्या है हमारे यहाँ पे, इट्स 25, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी 4 3 7 5, n इज 25, तो वी कैन राइट इट एज 25 प्लस 1 अपॉन सेकेंड थर्ड, दैट इज 26 अपॉन सेकेंड थर्ड, राइट, दैट इज 13। अब 13 को ढूंढ लीजिए, ये हमें लोकेट करना है किस सीएफ में होगा, साइज ऑफ 13th लाइज इन, 13th आइटम लाइज इन CF, 13 किस में है, 18th में, 18, देयरफॉर मीडियन। अब एक्स पे जाइए आप, यहाँ 18 CF है, 6 फ्रीक्वेंसी, 4 इज मीडियन, देयरफॉर मीडियन इज 4, दैट इज m इज इक्वल टू 4। हम यहाँ गलत कर रहे थे, हमने n5 लिखा था, लेकिन ये कौन सी सीरीज़ है, डिस्क्रीट सीरीज़ है। डिस्क्रीट सीरीज़ में n क्या होता है, दैट इज समेशन ऑफ f, दैट इज द नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज विच इज 25 हियर। अब हमने क्या किया, पहले CF हम निकालते हैं, कैसे, बाय टेकिंग द सम ऑफ द फ्रीक्वेंसीज, फिर इन वैल्यूज़ को हमने क्या करना है, इस फार्मूला में सबस्टिट्यूट करना है, फिट करना है। एक बात याद रखिए कि हमने यहाँ असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर नहीं दिया, क्योंकि ये वहीं से असेंडिंग ऑर्डर में था, राइट। अब देख लीजिए, साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन सेक्टर 25 प्लस 1 बाई दैट इज 13। 13 को हमने लोकेट, 13 वहाँ है ही नहीं कहीं भी, अब कहीं ना कहीं तो होगा, कहाँ पे है ये, CF में, किस CF में, यहाँ इस 18 में है, क्योंकि 12 में है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, इसमें है और इसमें है, लेकिन हमने लावेस्ट देखना है, तो इसलिए 18। अब 18 के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में देख लीजिए, फ्रीक्वेंसी क्या है, 6, और हमारा x क्या है, एक्चुअली दैट इज़ 4। अब इस एतबार से अगर हम देखें, जो 18th है इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है, और इसका जो मीडियन है दैट इज़ 4, एज सच और मीडियन इज़ 4, राइट। तो इंशाल्लाह कल हम देखेंगे कंटिन्यू सीरीज़ में कैसे मीडियन कैलकुलेट किया जाता है। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।